सो इट्स माई बर्थडे टुडे एंड आई डोंट नो कि मुझे ये सब पूरा डिटेल्स में शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज पीपल जज वेरी फास्ट, बट स्टिल ऑडियंस है, आई वुड लाइक टू बिलीव कि थोड़ी सी एडवांस्ड है, थोड़े वेल इंटेलेक्चुअल लोग हैं और इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली इसलिए शेयर करना चाहता हूँ सो दैट अगर इससे एक बंदे को भी हेल्प मिलती है देन आई विल बी वेरी थैंकफुल। सो मैं अपना जर्नल लिखने लगा था 4-5 महीने पहले। तो मैं सबसे पहले आपको एक 2-3 पेज पढ़ के बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जर्नी ऑफ पास्ट 2 मंथ्स और ये पेज मैंने लिखा था September 5th 2023 10:08 PM। मैं पूरा डिटेल्स में अपने जर्नल उस टाइम पे लिखने लगा था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट ऑल started 2-3 years back. I used to have shortness of breath, especially while riding bike wearing helmet, but I did not pay any attention to it. Then when I was going to Kashmir on June 14, 2023, I felt shortness of breath and it was very bad. बीच बीच में कुछ लाइन जो मैं नहीं पढ़ सकता जिसमें कुछ डिटेल्स है, किसी के नाम है, तो वो मैं वहाँ पे कट डाउन कर दूँगा। I could not breathe, but I managed thinking it was nothing. Came back home, I had got into this habit of not eating enough and working out intensely 7 days per week, not taking rest even on Sundays, going to play cricket, was working out at insane level with किसी का नाम who probably was on steroids. Came back home and one day did not eat much and did एक एक्सरसाइज का नाम है अगेन फेल्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट बीटिंग फास्ट एंड दिस टाइम आई सैट डाउन ऑन द फ्लोर, लेट डाउन, कुछ भी डिटेल्स है। देन आई सेंस्ड इट्स एनजाइटी, केम बैक होम, वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद कश्यप, कश्यप मेरे दोस्त का नाम है, वेंट टू रामबन ऑन बाइक विद माई फ्रेंड सुनील एंड केप्ट feeling shortness of breath here and there. Then told Masi about it, went to Jammu. This time I developed a new symptom, that is loss of balance. This was bad. One morning in July, mom dad went somewhere and I felt very bad, loss of balance. This was so bad that I felt like dying. Called Masi. Masi came and somehow we managed. I cried so much and talked about cricket. Masi told my parents that it's anxiety. Then entire July, August were the worst 2 months of my life. Loss of balance, shortness of breath and whatnot. Went for MRI. I could not sit there inside. मुझे काफ़ी टाइम से क्लॉस्ट्रोफोबिया फ्रॉम चाइल्डहुड है और उस टाइम पे एनजाइटी भी थी, तो मैं वहाँ पे करवा ही नहीं पाया। आई केम आउट रनिंग। देन इन अगस्त एंडिंग वेंट टू, एक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, आई रैन अवे और आई ट्राई टू रन अवे, स्टिल मासी फोर्स्ड मी टू गो इनसाइड, got checked. He said it's only psychological dizziness, gave medication. Now I'm feeling good. Now with the help of meditation, vision board, positive thoughts, pranayama, conscious breathing and many other good habits, I'm able to manage it well. One thing is clear, that it's nothing physical. The symptoms I have on one day are not there the other day. It's just psychological and now I can fight it well. Lastly, I'll say that past 2 months, that is half June, July, August were the worst 2 months of my life, but at the same time they taught me so much, introduced me to किसी का नाम है, and it's life changing. Now I'm happy and grateful even for being alive and breathing. There is light at the end of the tunnel. So this was the journey and I would just like to add here कि almost everyone around us has some sort of anxiety and अब जब मैंने यहाँ से निकला हूँ आई एम कम्प्लीटली बैक। तो अब मैं आपके साथ कुछ लर्निंग्स शेयर करना चाहूँगा जो आई होप कि किसी को हेल्प करें। तो ये है कि हम सबको एनजाइटी होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, बट ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग faces anxiety at some point of time, and I think there are only 2 groups of people who don't feel anxiety. First of all are the dead people. Dead people don't feel any anxiety at all, and the second kind of people are psychopaths, जिनको दूसरे की emotions के साथ या वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके consequences का कोई
केयर नहीं होता तो उनको भी नहीं फील होती, बट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फेसेस एंजाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड मुझे जब ये शुरू हुआ था तो द प्रॉब्लम वाज, और किसी के साथ भी अगर ये चीज़ हो रही है तो मैंने अब यही चीज़ सीखी है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट। मैं इसको कम्प्लीटली ठीक करना चाहता था, और मेरी एंजाइटी इस वजह से हो रही थी क्योंकि आई वॉज फीलिंग एंक्शियस अबाउट दिस फीलिंग दैट आई हैड, कि मुझे ये क्यों हो रही है, मुझे क्यों हो रही है, मुझे ये ठीक क्यों नहीं हो रही, अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, अच्छे से वर्कआउट कर रहा था, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो उसको मैं बिल्कुल ठीक करना चाहता था, उसकी वजह से इट गॉट वेरी बैड, और मैं बिल्कुल अपने जिम में वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था, बाहर नहीं जा पा रहा था, इसीलिए मैं अपने गांव वापस चला गया एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। मैंने उस टाइम पे मैं बिल्कुल 63 kgs तक चला गया था आई थिंक। इस टाइम पे आई एम 73, तो ऑलमोस्ट 10 kgs का डिफरेंस था। तो जिन चीज़ों में मुझे हेल्प किया है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन, आई बीन डूइंग इट एवरी सिंगल डे। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक, आई गो टू टेम्पल्स। मैं फिर से प्रे करने लगा। मैं चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा प्रे करता था, बट समहाउ आई लॉस्ट टच विद इट। और उसके बाद मेडिटेशन, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, और मुझे गीता ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, श्रीमद् भगवत गीता। और उसी के साथ कॉन्शियस ब्रीदिंग, प्राणायामा, विज़न बोर्ड, राइटिंग जर्नल एवरी सिंगल डे। और सबसे मेन चीज़ है कि आई हैड लॉस्ट टच with a lot of people in my life who are very close to me, and once again I started talking। मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, शिवम, सुनील, कश्यप, मैं इन 3 दोस्तों के साथ बिल्कुल सब कुछ शेयर करता था और अपने घर वालों के साथ सब कुछ शेयर करने लगा। एंड आई स्टार्टेड बीइंग वल्नरेबल। मैं बहुत सालों से इमोशनल ब्रेकडाउन्स अपने उनको हाइड करता था, किसी के सामने नहीं इमोशनल ब्रेकडाउन होने देता था, बट दिस टाइम कम्प्लीटली चेंज्ड। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि आई एम कम्प्लीटली अ डिफरेंट मैन, और आई एम वे बेटर देन आई वॉज बिफोर। इस टाइम पे मैं बहुत सी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन सो वेल। सो जिस टाइम पे मुझे ये सब कुछ हो रहा था तो उस टाइम पे मेरी मासी भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एज अ काउंसलर काम किया है, तो वो मुझे अब बता रहे थे कि उस टाइम पे थिंग्स वर वेरी बैड, और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। लाइक शी थॉट दैट इट्स गोना टेक ईयर्स नाउ, बट राइट नाउ आई एम वे बैक, आई एम सो बैक। जिम में अच्छे से वर्कआउट्स हो रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ। जिस टाइम पे आई वॉज गोइंग थ्रू इट, तो उस टाइम पे मुझे याद है, मैं मिशन इम्पॉसिबल एक मूवी आई थी तो मैं वो देखने गया हुआ था, और मैं अंदर बैठ ही नहीं पाया। लाइक इट वाज सो बैड कि आई हैड टू रन आउट। उसके बाद मैं ओपनहाइमर देखने गया और मुझे कुछ पता नहीं है कि उस मूवी में क्या हुआ, क्योंकि मैं नहीं देख पाया। तो एक चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मुझे उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला था कि तुम वर्कआउट करना बंद कर दो, लेकिन मैंने उस टाइम पे मुझे इतना लॉस ऑफ बैलेंस होता था, मुझे चला भी नहीं जाता था, बट स्टिल एक दिन भी ऐसा नहीं किया जिस दिन मैंने वर्कआउट नहीं किया। मैंने हर दिन वर्कआउट किया, एंड आई थिंक उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है रिकवर करने में। एंड राइट नाउ इफ़ आई एम सिटिंग हियर, इफ़ आई एम टॉकिंग, तो ये सब कुछ इन्हीं सब चीज़ों का मिक्सचर है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अच्छे से मेडिटेशन किया है हर दिन, प्राणायामा, खुद को जाना है क्या मेरे इश्यूज़ हैं। आई हैव हील्ड माई सेल्फ। क्रिकेट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा, लेकिन मैंने वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं देखा, बिकॉज आई डोंट फील लाइक वॉचिंग क्रिकेट एनी मोर, आई डोंट फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट एनी मोर। एंड दैट वाज मुझे अब जाके पता चला है कि दैट वाज अ वेरी unhealed part of me that now I am at peace with। तो it's not that कि मैं उसको दबा रहा हूँ, it's just that कि operating on a different level और जस्ट हीलिंग माई सेल्फ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ये दोस्त शिवम, सुनील, कश्यप, जिनके साथ मैंने बात की, जो हमेशा मेरे साथ यहाँ पे थे, एंड सम अदर पीपल हु आई एम वेरी थैंकफुल टू, एंड आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू देम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज हेयर, एंड जस्ट नो दैट यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ योर एनजाइटी, जस्ट मेक पीस विद इट। जस्ट इसके साथ लड़ना बंद कर दो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपको एनजाइटी फील होती है तो इट जस्ट मीन्स दैट यू आर अ ह्यूमन, क्योंकि अगर एनजाइटी नहीं होती तो ये सब कुछ हम लोग अच्छे जो कपड़े पहनते हैं, अच्छा तैयार होके बाहर जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, मॉम सन, जो भी इस टाइप के हम लोग
रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को मेंटेन ही नहीं करते जस्ट बिकॉज देयर एग्जिस्ट एंजाइटी एंड इट्स ओनली अ इमोशन। जस्ट लाइक जैसे आप खुश फील करते हैं, आप सैड फील करते हैं, उसी तरह से एंग्शियस फील करना भी एक नॉर्मल चीज़ है, और ये हम लोगों को अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती है। And lastly, I would just say that same line once again, there's light at the end of the tunnel, just keep going.